Hello, dear students. Myself Shivani Gupta, and I am here to teach you all mathematics. This is my video in the series of matrix algebra, and today we will discuss the rank of a matrix. So, this is a very important topic. So, first we have to understand that what actually the rank of a matrix is. So, the rank refers to the number of independent rows in a matrix. That means, let us consider one example. Let us say this is a matrix. It is a 3 cross 4 matrix. So if we observe this matrix, so in this matrix the second row depends on the first row. The each element of the second row is the double of the first. 1 into 2 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4 into 2 8. So this row depends on this, but there is no such connection between this row and this or this. So in this matrix we have two independent row. This is an independent row and this is an independent row, and this row depends on the first one. So the rank of this matrix will be 2. So in this way we can find the rank of any matrix. But if we have a big matrix, or if we are not able to judge the number of independent row by just observing the matrix, then we have a few methods to evaluate the matrix. Now further we will discuss about the methods that we use to evaluate the rank of the matrix. We have three methods to evaluate the rank of matrix. First one is the determinant method or the minor method. Second one is by reducing the matrix into normal form. And third one is by reducing the matrix into the echelon form. In this video, we will discuss about this determinant method. So what we do in this method, first we need to understand what actually a minor is. So the minor in any given matrix, the minor is the determinant of the square matrix that you can retain from the given matrix. Let us say we have a matrix this 1 2 3 4 5 6. ठीक है. So this is a 2 cross 3 order matrix. So आप इस मैट्रिक्स में से कितने स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं. लेट अस से आपको अगर ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स बनानी है, तो ऑर्डर 1 के लिए तो आपका जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे मैट्रिक्स के, वो ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, तो हम 6 ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स बना सकते हैं. तो ऑर्डर 1 के हमारे पास कितने माइनस होंगे, 6. इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर 2, तो इस मैट्रिक्स में से हम ऑर्डर 2 के कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं. लेट अस से हमने ये वाले एलिमेंट्स लिए, दैट मीन्स 1 2 4 एंड 5. तो ये एक मैट्रिक्स बनकर आई. इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो दिस विल बी 5 माइनस 8, दैट इज माइनस का 3. तो दिस इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ऑर्डर 2. सो किसी भी गिवन मैट्रिक्स में से आप कितनी जो स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइनर. ऐसी अगर आप कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो, अगर हम ये वाले एलिमेंट कंसीडर करें, तो दिस विल बी 2 3 5 6. इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो डेट विल बी 12 माइनस 15, डेट मीन्स माइनस 3. तो दिस इज अनदर माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो एक मैट्रिक्स में से आप जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना के उनका जितने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डेट आर कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ विल डिस्कस कि हाउ टू इवेल्युएट द रैंक थ्रू दिस माइनर मेथड. So in the minor method, we have to follow the following rules to evaluate the matrix. So the rank of a given matrix A is said to be R if every minor of order R plus 1 is 0. That means let us say if the rank is 2. This is how we denote the rank. So if the rank is 2, तो फिर 3 ऑर्डर के जितने भी आप माइनर बनाएंगे उस मैट्रिक्स से, तो उन सबकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0. And second is कि there is at least one minor of order R which doesn't vanish. So if the rank of the matrix is 2, then at least there should be at least one minor of rank 2 which does not vanish. That means उसकी वैल्यू जो है वो 0 ना आए. दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स A के किसी भी माइनर की वैल्यू अगर 0 आती है, तो उस सब मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब मैट्रिक्स. और अगर किसी भी माइनर की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर. तो अगर हम इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो हमारी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि
अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो आर है तो r+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और अगर उसकी रैंक आर है तो आर ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर होगा जो कि नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल. This is a 3x4 matrix and we have to evaluate the rank of this matrix by the minor method. So first अगर हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो what we will see कि जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो के ट्वाइस हैं। 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8। तो ये जो आपकी सेकेंड रो है ये इस पर डिपेंड कर रही है, बट द फर्स्ट एंड द थर्ड रो आर इंडिपेंडेंट। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, बट वी हैव टू फाइंड आउट दिस बाय माइनर मेथड। तो विल सी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे माइनर्स बनाने होंगे। ठीक है, तो सिंस इट्स अ 3x4 मैट्रिक्स तो यहाँ पे ऑर्डर 4 का तो कोई भी माइनर हम नहीं बना सकते क्योंकि 4 रोज और 4 कॉलम की कोई भी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो जो मैक्सिमम यहाँ पे माइनर पॉसिबल है वो 3 ऑर्डर का पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप एक माइनर बनाएंगे 3 ऑर्डर का। तो लेट अस हम ये एग्जांपल ले लेते हैं 3 ऑर्डर का माइनर। दिस विल बी 1 2 3 2 4 6 2 1 1। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो एक तो सीधा वैल्यू मतलब मेथड होता है कि जो हम जनरली जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे एंड वी नो कि रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगाने से ना तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है और ना ही उसकी रैंक चेंज होती है। तो अगर इफ वी आप अगर R2 को R2 माइनस R1 से रिप्लेस कर देते हो तो ये जो आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। फर्स्ट आपको ऐसे लिखना है, सेकेंड रो में से आपको फर्स्ट माइनस करानी है। तो 2 - 1 1, 4 - 2 2 एंड 6 - 3 3। सो नाउ इन दिस मैट्रिक्स यू कैन सी कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल रोज आ गई हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज या फिर 2 कॉलम सेम आ जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0। सो इस जो भी आपने ऑर्डर माइनर कंसीडर करा उसकी वैल्यू 0 आ गई, डेट मीन्स इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कोई भी 3x3 ऑर्डर का आप माइनर यहाँ पे लेंगे तो हर एक की वैल्यू क्या आएगी, 0। सो यहाँ पे we will find out that the minor of order 3 are equals to 0. All the minors of order 3 are equals to 0. Now we consider a minor of order 2. Let us see, we consider this one. This is 1 2 2 4. आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो this will be 4 - 4, that means 0. आप एक दूसरा माइनर कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस वन। तो दिस विल बी 6 8 1 एंड 3। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 10 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज अ नॉन सिंगुलर माइनर। सो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक R है तो R+1 ऑर्डर के सारे माइनर जो है वो 0 आने चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं। और अगर मैट्रिक्स की रैंक R है तो R ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर होना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है। तो यहाँ पे हमें एक माइनर मिल गया है ऑर्डर 2 का जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है। सो वी कैन क्लियरली से दैट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. So by this method we can evaluate the rank of any matrix. Now I will give you one more example which is of order 5 matrix. Then see how we evaluate the rank of an order 5 matrix. Now this is a 5x5 order matrix. So we have to find out the rank of this matrix. So अगर आप माइनर मेथड से इवेल्युएट करेंगे तो माइनर मेथड क्या कहता है कि जितने भी पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सबके सॉल्व करके आप डिटर्मिनेंट निकालो और फिर 0 नॉन जीरो के हिसाब से आप जज करो कि रैंक क्या होगी। तो इस मैट्रिक्स में पहले आप 5 ऑर्डर के बनाएंगे मैट्रिक्स, देन आप 4 ऑर्डर के बनाएंगे माइनर्स, देन 3 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के। तो इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले आपको एक बार जितनी भी आपको रोज दे रखी है मैट्रिक्स में वो आपको एक बार देखनी है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप ये मैट्रिक्स ऑब्जर्व करते हो तो दिस विल
this is the entries are 3 4 5 6 7 and this is 4 5 6 7 8. So if we see कि इन दोनों रोज में 1 1 का डिफरेंस है, सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपका 1 1 का डिफरेंस है, और अगर आप इन दोनों रोज को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हर एलिमेंट के बीच में 5 5 का डिफरेंस है. तो व्हाट वी आर गेटिंग कि ये जो दोनों रोज हैं ये फर्स्ट रो पे डिपेंड करती हैं, और जो ये आपकी फिफ्थ रो है ये आपकी फोर्थ रो पे डिपेंड करती है. तो अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हैं वो एक्चुअली हैं आपकी 2. तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? 2 होगी. ठीक है, बट आपको अगर एग्जाम में प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना होगा तो हाउ विल यू डू? अब आपको पता है कि इसकी रैंक क्या है? 2 है. ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या दिखाना है कि 2 से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनस बनेंगे वो सारे वैनिश हो जाएंगे, और 2 ऑर्डर का एटलीस्ट आप एक माइनस शो करोगे जिसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी. ठीक है, तो 2 से बड़ा लेना है तो लेटर से हम 3 ऑर्डर का माइनर ले लेते हैं, और अगर हम दिखा दें कि 3 ऑर्डर के सारे माइनस की वैल्यू 0 आती है तो डैट मीन्स इसकी रैंक जो है वो 3 नहीं होगी, 3 से कुछ छोटी होगी. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वन 3 ऑर्डर माइनर. लेट अस से हमने ये माइनर ले लिया. ठीक है, तो दिस विल बिकम अगेन हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे. तो इफ वी रिप्लेस R3 बाय R3 माइनस R1 एंड ऑल्सो R2 बाय R2 माइनस R1, सो दिस विल बिकम, फर्स्ट रो को ऐसे ही रखना है, सेकेंड रो में आपको R2 माइनस R1 करना है. तो यहाँ आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 6 विल अगेन 5 एंड 12 माइनस 7 विल बी 5. और अगर आप R3 को R3 माइनस R1 करेंगे तो 15 माइनस 5 विल बी 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 10. अगेन एक और अगर हम ऑपरेशन लगाए, अगर हम R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R2 से, सो दिस मैट्रिक्स विल बिकम 5 6 7 5 5 5, और R3 को रिप्लेस करना R3 माइनस R2 से, तो 10 माइनस 5 5 5 एंड 5. सो इस मैट्रिक्स में आपके 2 रोज जो है वो सिमिलर आ रहे हैं. तो जिस भी मैट्रिक्स से अगर 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाती है 0. सो इस माइनर की वैल्यू कितनी आ गई है? 0. इस तरीके से आप इस मैट्रिक्स में से जितने भी 3 ऑर्डर के माइनर्स निकालेंगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0. एंड इफ वी कंसीडर वन 2 ऑर्डर माइनर, लेट अस से वी कंसीडर दिस. सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 35 माइनस 36, दैट मीन्स -1. सो आपको ऑर्डर 2 का एक नॉन जीरो माइनर मिल रहा है, और ऑर्डर 3 के आप अगर सारे माइनर सॉल्व करके दिखाएंगे तो सबकी वैल्यू आएगी 0. सो जो डेफिनेशन है उससे आप कह सकते हो कि द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स. There are 2 more methods to evaluate the rank of the matrix, that are normal form and the echelon form. We will discuss these 2 forms in the next video. I hope you find this video useful. Thank you very much.